Financial statements basically includes what? Balance sheet and profit and loss account. ये में हमने interconnections we have discussed. Then we discussed about financial statements. Hope you remember there are 4 major financial statements which are prepared by the company. What was those? What were those? Balance sheet, P&L Yes. account, Yes. cash flow statement, notes Yes. to account. Very good. Very Cash good. flow. Okay. Balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, and notes to accounts. These 4 are the major financial statements which are prepared by the company. और एक मैंने चीज बताया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते किसके लिए है? Not only for the company but for many outsiders, users, right? Users के लिए मैंने कल एक नाम बताया था. Can anyone tell me what is the name? One more name which I told for users. Stakeholder. Very good, very good. Stakeholders, right? Those who are having some or the other interest in the company, हम उनको क्या बोलते हैं? Stakeholders बोलते हैं, right? So these are some of the stakeholders of the company who will be having interest in your financial statements. आप कुछ भी गलती करोगे, जानबूझ के करो या by what it is called, by default or by mistake, if you do some errors, who will be affected because of those errors? All these parties. So that's why showing proper financial position through financial statements is very important for the company. तो ये सारे यूजर्स आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. कैसे? फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, इफ यू टेक क्रेडिटर्स, आपको क्रेडिट देना है. व्हाट डू यू मीन बाय गिविंग द क्रेडिट? गिविंग सम टाइम फॉर यू टू मेक द पेमेंट. आपको क्रेडिट अच्छे से मिलना है, तो your financial position, if it is strong, then only they'll give you the credit, right? आपका financial position strong नहीं है, तो why they will not give you the credit? What it indicates? आप time पे payment नहीं करने वाले, right? When they feel if your financial position is weak and if you cannot make the payment on time, then definitely they will not give you credit, right? So same way lenders, same way customers. So if they have to be involved in your business, then you should show your true financial position to them. And which statements are showing the true financial position? That is financial statements, balance sheet, P&L account, etc. Okay, so यहाँ तक हमने अच्छे से डिस्कस किया था. उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? Yeah, definitions of auditing we had discussed. Okay, so yesterday we had discussed 2 definitions of auditing. Okay, I'm locking my class, so please make sure that from tomorrow onwards you should not come late. Who was that? Pranaya, kal se time pe aana hai. Okay, so let us move on. What is the first definition we studied yesterday, students? The definition given by Spicer and Pegler. Hope you remember that definition, and I have highlighted certain words, right? What exactly auditing means according to Spicer and Pegler? It is an examination. I told you the word examination is very important. अभी checking का बोलना भूल जा. अभी हम checking की जगह कौन सा word use करें? Examination, right? So examination is done by an auditor of what and all? Books, accounts, and vouchers of a business. Okay, so that is the definition given by the Spicer and Pegler. And how they are doing that examination? They want themselves to be satisfied. About what? About true and about the balance sheet, right? Whether that balance sheet is showing true and correct picture of the business, right? So in auditing, what auditor is trying to check? Whether books of accounts are showing the true picture. जैसा है वैसे ही दिखा रहे हैं क्या?
Is there any fraud involved? Is there any mistake in the books of accounts? If so, he wants to identify that mistake. How he is identifying? Through examining all these documents. So that is according to Spicer and Pegler. और एक definition हमने कल पढ़ा था, that is definition given by ICAI. थोड़ा easy है, मैंने बताया था. But ICAI में याद है student, एक important term और एक add किया था वो लोग ने. What was that? Not only examination, according to them, it should be an independent examination, right? मतलब books of accounts auditor check करता है, but it has to be an independent examination. What is independent examination? Can anyone tell me fast? Ma'am, there is no one interfering between their auditing Very work. good, very good. Who was that? Can you give me your name? Ma'am, Sumit. हाँ Sumit, thank you, thank you. Okay, Sumit ने बताया what is independent examination means. No one should interfere in his work. Generally interference मतलब बाहर वाले ज्यादा नहीं करते हैं. Interference कौन करता है? खुद मैनेजमेंट. I told you some example, right? समझो कोई गोडाउन चेक करने गया, ओके, गोडाउन में मैनेजमेंट जस्ट जाके बताएगा, अरे बाबा वो पार्ट गोडाउन का चेक मत कर, थोड़ा उधर रिकॉर्डिंग बरोबर नहीं है, सिर्फ इतना चेक कर. They cannot tell like that to an auditor, right? So that's why we are using the term independent examination. So independent examination of every company, whether it is profit oriented or not, है ना? According to ICAI, कंपनी प्रॉफिट ओरिएंटेड है नहीं है, फिर भी उनका ऑडिटिंग होना कंपलसरी है. साइज ऑफ द कंपनी डज नॉट मैटर. स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, मीडियम स्केल है, देन ऑल्सो दे हैव टू डू द ऑडिटिंग. सो irrespective of any legal form, मैंने आपका बताया वो कंपनीज एक्ट के अंदर हो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर हो, इंश्योरेंस रेगुलेशन के अंदर हो, company is a company, they have to do auditing. So such an examination is done by the auditor. Why? To express his view or opinion. I told you he cannot give the conclusion, he can give his opinion. So that is auditing according to ICAI. Hope ये दोनों definition आपको एक और बार recall हो गया. At least half of the definition आपको याद रहना चाहिए. बाकी आधा आप जब पढ़ोगे तब याद आ जाएगा, अभी आधा तो बाय हार्ट होना चाहिए. ठीक है? So now before going to the difference between auditing and accounting, मुझे और थोड़ा आपको auditing के बारे में बताना है. So just let us move on. Just see what is auditing in simple terms and some of the description of auditing. Okay. So what is auditing? It is an examination of various books of accounts, as I already told you, by an auditor, followed by, remember I told you students, hope all of you are in class और सुन रहे हो, लेटे हुए तो उठ जाओ, बैठ जाओ, sit properly, assemble all your things properly and sit at one place. Okay, ये मैं वापस बता दूंगी. Okay, so I told you one thing students, auditing में auditor सिर्फ books of accounts नहीं check करेगा, उसको जरूरत पड़ा तो जाके कल जाके गोडाउन जाके विजिट करके उधर स्टॉक टेकिंग भी कर सकता है. वो खुद जाके इंडिविजुअली स्टॉक काउंट कर सकता है. इफ नीडेड ही कैन गो टू अ प्लांट एंड चेक आउट मशीनरीज, कितना मशीनरीज है, ओके, कौन सा मशीनरी वर्किंग कंडीशन में है, सारी चीजें चेक कर सकता है. सो स्टूडेंट्स प्लीज रिमेम्बर, auditing means it is not restricted only examination of books of accounts. Okay, it includes, even I have written here, see, physical checking of an inventory means stock, to make sure that all departments are following documented system of recording transactions. For any company, dear students, documentation is very important. What do you mean by documentation? I'll give you simple example. समझो आज 100 units goods गोडाउन के अंदर आया और 1000 units गोडाउन से बाहर जा रहे हैं. इसका proper recording, कितना goods गया, कितना cost में आपने भेजा, कितना goods अंदर आया, कितने में अंदर आया, उसका actual value क्या है, ये सारे चीजें documented way में record होना ही चाहिए. Nowadays, it is in the electronic form, no issues, but it has to be recorded. So documentation is very important for any company. So
In simple term, if you want to tell what is auditing, it is examination or inspection of books of accounts, not only books of accounts, even inventory, even plant, okay, by an auditor. So to check whether all the departments are maintaining properly the documents of all the transactions which are happening in the company. Okay. Again, transactions का meaning आपको पता है, आपने accounting study किया है, you know what is transaction. Whenever anything is involved where monetary या financial या money is going in and out, it is called as a transaction. So जब भी कुछ भी पैसा अंदर बाहर जा रहा है, आ रहा है, that has to be recorded. Okay, so that is a transaction. Now, second point देखो, it is done. Why auditing is done? To ascertain the accuracy of financial statements provided by the organization. Auditing क्यों करते हैं? और company को या auditor को whether the company's financial position is accurate, correct दिखा रहा है क्या, जो भी information है वो correct है क्या, ये check करना रहता है, right? To check that auditing is done. Okay. Now check our third point. Everyone, very important. Third point, concentrate करो. Auditing can be done internally by the employees or heads of a particular department. We call it as an internal audit. Okay. And it can be done externally by an outside firm or an independent auditor. We call it as an external audit. तो अभी auditing का दो variety हमने यहाँ पे देखा. What is that? Internal audit, external audit. What is an internal audit? खुद जब कंपनी का कोई भी एम्प्लॉई अकाउंटेंट हो सकता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकता है, वो एक बार पूरा डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड्स चेक करता है ना या एग्जामिन करता है ना, उसको इंटरनल ऑडिट बोलते हैं. ओके, व्हाट इज एन एक्सटर्नल ऑडिट? खुद अपना बंदा नहीं रहता है उधर, आउटसाइडर विल कम. Okay, an outsider will examine the books of accounts, that we call as an external audit. Okay, and generally the outsider कौन रहना चाहिए? I have written down. See here, who can perform an audit? In India, chartered accountant from ICAI or the Institute of Chartered Accountants of India can do independent audits of any organization. So in India, why I have written? In other countries, it is not controlled by ICAI. It may be their own rules and regulation. In US, there is some other thing called CAF. So like that, अलग-अलग countries में अलग-अलग institute है जो chartered accounting करवाता है. Okay. So in India, who can become an external auditor? The person who is a qualified and practicing chartered accountant. Okay. Clear हो गया students? So what is an auditing? Examination or checking of books of accounts. It is not only restricted to books of account. It can be checking of stocks in the godown. It can be checking of machineries in the plant, anything. Okay. Second thing, there can be an internal audit in the company and as an external audit also. What is an internal audit? Whether it is compulsory? No, internal audit is not compulsory. But every company do an internal audit. क्यों मैं बताती हूँ आपको. Internal audit generally अपने ही काम employees करते हैं. Okay, समझो कोई अकाउंटेंट जाके दूसरा डिपार्टमेंट का बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किया और उसको कुछ एरर्स मिल गया, तो क्या होगा इससे? वो अपने रिपोर्ट में लिखेगा और वो डिपार्टमेंट को बोलेगा कि देखो भाई, ये रिकॉर्ड तुम प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहा है, इसको तुम्हें चेंज करना है या कुछ और वे में मेंटेन करना है. तो तभी का तभी वो करेक्ट कर देगा. ये नहीं हुआ तो क्या होने का चांस है स्टूडेंट? जब बाहर वाले आएंगे उनके सामने नाक कट जाएगा कंपनी का, क्योंकि जो भी एरर्स है वो आइडेंटिफाई करेगा और वो अपना रिपोर्ट में लिखेगा. सो उससे अच्छा बिफोर एन एक्सटर्नल ऑडिटर कम्स, बेटर यू yourself do an internal audit. Try to find out all the errors and frauds happening in the company and rectify it before an external auditor comes. Okay, so
even though, I repeat students, even though internal audit is not compulsory, it is generally done by all the companies. Okay. Now coming to external audit. What is an external audit? An audit done by an outsider. Okay. Who is an outsider here, students? A qualified chartered accountant. Now the question is whether external audit is compulsory. Can anyone answer this? Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's compulsory. Yes, majority of the companies के लिए external audit compulsory है. Okay. Ma'am, not for every So, company. not for all companies. For example, if it is a sole proprietor company, okay, then external auditing is not compulsory for them. Again, if it is a partnership firm, it is not compulsory for them, provided there is some restriction. Okay, इतना शेयर कैपिटल बोल के फिक्स्ड है, उसके ऊपर जाएगा तो उनको ऑडिटिंग करना है, उसके नीचे रहेगा तो उनको एक्सटर्नल ऑडिट करना जरूरी नहीं है. वो कितना कैपिटल है वो सब आपको इधर डिटेल में नहीं चाहिए. But as of now, please remember one thing: all the public limited companies which are registered under Companies Act or the banking companies which are registered under Banking Regulation Act, insurance companies registered under Insurance Companies Act. So जो भी company है जो registered है under particular act, those companies, for them it is compulsory to do an external audit. Hope this is clear, students. Yes, Yes, ma'am. Yes, very good. Okay. So कौन ऑडिटिंग करता है? इंटरनल ऑडिट क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, कौन सा कंपनी है ऑडिटिंग करता है, कौन सा कंपनी नहीं करना है, ये सारे आपको क्लियर हो गया. रिति, डू यू हैव एनी डाउट्स? यू हैव रेज्ड द हैंड. रिति, डू यू हैव एनी डाउट्स? Okay. Shall we proceed? By mistake, I think she has raised the hand. Okay. Shall we proceed now? Yes, ma'am. Ma'am, it was by mistake. Sorry. Okay, it's okay. Okay, now come into the major topic of today. What is that? Difference between accounting and auditing. Hope अभी तक सबको auditing का meaning, definition थोड़ा बहुत digest हो गया है ना? किसी को डाउट है ऑडिटिंग क्या होता है इसके ऊपर? किसी को भी? Because even if you are having doubt, I am ready to explain it again, not an issue. You can ask. Yes, Khushbu. मैम, हाँ. एक्सटर्नल ऑडिटिंग और इंटरनल ऑडिटिंग डिफरेंट पर्सन से किया जाता है या सेम पर्सन? हाँ. ऑडिटर्स Okay, good सेम question. होते हैं? हाँ, मैं बताती हूँ. See, as I told, internal audit करने के लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी अपॉइंट कर सकते हो जो बाहर वाला है, या अपना खुद का एम्प्लॉय जो है जो अकाउंटिंग कर रहा है, या कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, या कोई मैनेजर है, उसको भी आप एक बार बोल सकते हो एक बार जाके इंटरनल ऑडिट करो. तो इंटरनल ऑडिट बाहर वाले भी आ सकते हैं, अंदर जनरली अंदर वाले ही करते हैं. क्यों? इसके पीछे दो रीजन है. एक रीजन है, आप बाहर वालों को बुलाएंगे तो क्या देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, है ना? उसको रेम्यूनरेट करना पड़ेगा, उसको अलग से पगार देना पड़ेगा. वही आप अंदर वाले हैं तो उनको जैसे भी वैसे भी वो लोग अपना ही एम्प्लॉय है, तो उनका काम के साथ ये भी काम कर देंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ पैसा देने की जरूरत है. तो इंटरनल ऑडिट जनरली कंपनी अपना खुद का एम्प्लॉय से करवाते हैं. वही एक्सटर्नल ऑडिट है तो it has to be done by an outsider. क्योंकि सपोज एक्सटर्नल ऑडिट भी, ये कंपनी अकाउंट ने ये पॉइंट क्यों रखा कि बाहर वाले आना चाहिए? कोई बता सकता है मुझे इधर? मेरा क्वेश्चन क्या है? आई विल रिपीट. व्हाई कंपनी अकाउंट क्लियरली मेंशन दैट external audit has to be done by an outsider? Why not an insider? मैम इनसाइडर हाँ. वो मतलब कुछ गलत भी कर सकता है, कंपनी की साइड ले सकता है, पार्शियल हो सकता है. एग्जैक्टली, है ना? And they can be bribed.
हाँ एग्जैक्टली, ये थोड़ा आराम से पढ़ा सकते हैं, अपना ही एम्प्लॉय है ना। अरे देखना जरा वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट करना है, ऐसे बोल सकते हो तुम लोग, खुद का एम्प्लॉय है। बट एक्सटर्नल है तो आई टोल्ड यू नो वन कैन इंटरफियर इन हिज बिजनेस, राइट। सो वो जो रिपोर्ट देगा वो परफेक्ट रहेगा। सो दैट्स व्हाई जनरली कंपनी कंपनी लॉ क्या बताया है, एक्सटर्नल ऑडिट हैज टू बी डन बाय एन आउटसाइडर। ओके, सो ये बेसिक आई थिंक क्लियर हो गया सबको। एनी डाउट स्टिल इट इज देयर अबाउट ऑडिटिंग बेसिक? अभी तक हमने ऑडिटिंग पूरा ग्राइंड करके पिया नहीं है, एक शॉर्ट लिया हमने छोटा सा। होप दैट इज क्लियर फॉर एवरीवन। एनी डाउट? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. Sure. गुड गुड। और किसी को कुछ भी डाउट है तो अभी क्लैरिफाई कर सकते हैं। एंथोनी, एनीथिंग टू टेल? कुछ डाउट है एंथोनी क्लास में? नो। डाउट नहीं है एंथोनी? वेरी गुड, क्लास में है ना? हाँ हाँ, समझ में आ रहा है ना? हाँ। वेरी गुड। राहुल, कुछ डाउट है? राहुल सो गया नहीं ना? राहुल रोल नंबर 18 यस मैम। है? वेरी गुड वेरी गुड। मैं ऐसा जगाती रहूंगी हाँ बीच बीच में, तो सोने का नहीं। ओके, नो मैम। संतोष है पेड़ के नीचे? यस मैम। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, प्रीतम, आज प्रीतम टाइम पे आया है। प्रीतम है ना, सुन रहा है ना? हाँ मैम। वेरी Present. गुड 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 गुड। ओके, चलो देन लेट अस मूव ऑन। आज का जो मेजर मैम। टॉपिक है, हाँ बोलो कौन हेलो है? मैम। हाँ संतोष बोलना। मैं किशोर एग्जिट हो गए, उनको डिस्कनेक्ट हो गया उनका, तो वो बोल रहे कि एंट्री अनलॉक करने के लिए। ओके, एक मिनट। ओके ओके संतोष, बोल दो उसको, ही कैन कम इनसाइड नाउ। दरवाजा खटखटाने बोलो आके। ओके मैम। ओके okay, chalo students, then let us move on. What we are studying today is a major topic. क्या है आज का टॉपिक? द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको अकाउंटिंग क्या होता है सबको पता है। व्हाट इज अकाउंटिंग स्टूडेंट्स? कैन एनीवन टेल मी? जेबास्टिन, बहुत दिन हो गया बात किया नहीं। जेबास्टिन, रुको रुको खुशबू। जेबास्टिन, यस, हाँ जेबास्टिन इज हियर, गुड। अकाउंटिंग क्या होता है जेबास्टिन? मैम डे टू डे ट्रांजैक्शन हाँ, डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड राइट? करते हैं। Yes, exactly. Thank you, thank you. So accounting means recording day-to-day transactions in the books of accounts, right? आपको पता है, हम जर्नल मेंटेन करते हैं, लेजर मेंटेन करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं। All these are parts of accounting. Okay, Kishore is joining now. So accounting क्या होता है? Recording the transactions in the books of accounts. It can be journal, ledger, P&L account, balance sheet, cash flow statement, anything, right? So that is accounting. So हमारा first difference है based on meaning. You can see here I have written some basis of difference. आपको exam में easy होने जैसे ही मैंने इधर लिखा है, याद रखने जैसे ही. So what is the first basis of difference I have written here? Meaning. Okay, on the basis of meaning, what is accounting? Recording of day-to-day transactions. दिन में क्या क्या परचेज हुआ है, सेल हुआ है, कितना क्या हमने एक्सपेंस स्पेंड किया है, कितना पैसा आया है, ये सारा रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग में होता है।
What do you mean by auditing then, students? It is not recording. Remember, we told, we have discussed, it is examination of transactions. जो ऑलरेडी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हुआ है उसको एग्जामिन करना, इसको चेक करना हम कहाँ पे करते हैं? ऑडिटिंग में करते हैं. तो फर्स्ट डिफरेंस क्लियर हो गया. इधर रिकॉर्ड होता है अकाउंटिंग में, जो रिकॉर्ड हुआ है उसका एग्जामिनेशन चेकिंग होता है ऑडिटिंग में. नाउ गो टू सेकंड डिफरेंस. बेस्ड ऑन नेचर, कौन सा टाइप का काम करते हैं अकाउंटिंग में? अकाउंटिंग में the nature of work which we are doing in accounting is finalization of final accounts. हम कहाँ पे रुकते हैं? एक बार फाइनल अकाउंट्स फाइनल हो गया, खत्म हो गया, डन. अकाउंटिंग फॉर करंट ईयर इज ओवर, फाइनल हो गया. बट ऑडिटिंग में क्या होता है? सिर्फ फाइनल अकाउंट्स बना के रख दिया काफी नहीं है. रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और records which we have recorded, that is important. What do you mean by reliability? कितना यकीन कर सकते हैं इसके ऊपर? That is checked under auditing. तो अकाउंटिंग किधर खत्म हो रहा है? जिधर हम फाइनल अकाउंट्स बना दिया, रेडी कर दिया, हो गया. ऑडिटिंग में क्या होता है? जितना फाइनल अकाउंट्स अकाउंटिंग में बनाया है उसको कितना यकीन कर सकते हैं, कितना रिलायबल है वो एग्जामिन करना ऑडिटिंग में होता है. होप सेकंड पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीवन. नाउ गो टू द थर्ड वन, ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एन अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम लोग? टू ascertain द ट्रेडिंग रिजल्ट्स. व्हाट इज रिजल्ट्स? प्रॉफिट है, लॉस है ना, कितना पानी में है, कितना ऊपर है, किधर तक डूब गए हैं हम लोग, ये सब फाइंड आउट करना अकाउंटिंग में होता है. ओके, सो फाइंडिंग आउट और ascertaining द ट्रेडिंग रिजल्ट्स इज डन इन केस ऑफ अकाउंटिंग. बट ऑडिटिंग में क्या होता है? सर्टिफाई द करेक्टनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो इधर हमने बनाया है वो कितना करेक्ट है ना. ऊपर हमने देखा कितना रिलायबल है. रिलायबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड होता है? करेक्टनेस के ऊपर, है ना. सो कितना करेक्ट है जो स्टेटमेंट्स बनाया वो हम चेक करते हैं ऑडिटिंग में. सो वो दिस पॉइंट इज क्लियर. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग? जस्ट फाइंडिंग आउट द रिजल्ट्स. What is the objective of doing auditing? To check whatever results which are disclosed by financial statements or accounts, whether it is correct or not. That is done in auditing. ये तीन difference clear हो गया students. Now let us move on to fourth one, scope. Okay. So scope जनरली, स्कोप मतलब क्या? कितना कवर होता है. प्लीज अंडरस्टैंड, ये टर्म का मीनिंग याद रखो स्टूडेंट्स. स्कोप 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 बहुत बार सुने हुए ना. स्कोप ऑफ आईटी, स्कोप ऑफ दिस, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. व्हाट एग्जैक्टली स्कोप मीन्स? स्कोप का मीनिंग का, स्कोप का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इट इज कवरिंग. ओके, स्कोप मीन्स स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज limited to preparation of various financial statements. Okay, मतलब financial accounting खत्म हो जाएगा जिधर हम financial statements ready कर दिया, दे दिया किसी को, वो खत्म हो गया. But auditing में scope इतना ही नहीं रहता है. Right, I told you it is not limited only to books of accounts. It depends on the agreement between the two persons. Who are the two person here? Company and ऑडिटर एंड कंपनी के बीच में जितना भी एग्रीमेंट हुआ है, क्या क्या चेक करने वाला है, क्या नहीं चेक करना है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी एंटर्ड इन एग्रीमेंट. सो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते वो सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेगा. उसका जो स्कोप है दैट डिपेंड्स ऑन आइदर एग्रीमेंट या ऑलरेडी लॉ में दिया रहेगा. ऑडिटर इतना 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 सारे चेक करेगा, उसके ऊपर रहता है. Hope this point is clear students. Confusing नहीं है ना. So audit accounting में कितना चेक करना है वो depends on financial statement. That is only limited to financial statement accounting में. Okay, but auditing में scope broader है. It is not narrow. It is not only limited to financial statement. It is elaborated depending on the agreement or law. Yes, Rahul. Do you have any doubts? You raised hand. Yes, ma'am. Yes, Ram, tell me.
स्कोप ऑफ अकाउंटिंग मैम एक बार वापस समझाओ ना. हाँ, सी स्कोप ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या, अकाउंटिंग में क्या कवर अप होता है, हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में, कहाँ तक वो लिमिटेड है, सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. देखो हम लेडजर बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, एंड फाइनल कहाँ तक बनाते हैं हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज फाइनल अकाउंट्स बना के खत्म करते हैं. उसका काम उतना ही है अकाउंटिंग में. उधर हम गोडाउन जाके विजिट करना या कुछ करना, वो कुछ नहीं होता है. सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना किसका काम है, अकाउंटिंग का काम है. बट ऑडिटिंग में ऑफकोर्स चेक करना है, सिर्फ रिकॉर्ड चेक करना है रहता है क्या, नहीं. उसका स्कोप क्या है, और भी रहता है. चेकिंग, गोइंग टू द गोडाउन, चेकिंग द स्टॉक्स देयर, गोइंग टू द प्लांट, चेकिंग द मशीनरीज देयर. सो वहां पे स्कोप या एरिया क्या रहता है, ब्रॉडर रहता है कंपेयर टू अकाउंटिंग. Okay, hope it is clear. You can write here in place of various financial statements I have written ना, आप ये भी लिख सकते हो, accounting scope is limited to maintaining books of accounts. That's it. But auditing scope is broader. It covers not only checking books of accounts, many other things depending on the agreement. Now hope it is clear. Clear हुआ Yes, ma'am. राहुल? Very good. Yes, Okay. ma'am. Okay, now next difference, qualification. अभी मैंने आपको बताया अकाउंटेंट कोई भी बन सकता है ना, विद प्रॉपर डिग्री. कभी कभी कोई कंपनी में 12th पास वालों को भी अकाउंटेंट बना देते हैं, कोई कोई कंपनी डिग्री खत्म होते ही उनको अकाउंटेंट बनाते हैं. ऐसा कोई जरूरत नहीं है अकाउंटेंट शुड बी ए क्वालिफाइड सीए, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है. करेक्ट? सो दैट इज वन डिफरेंस. टू बिकम एन अकाउंटेंट यू नीड नॉट बी ए चार्टेड अकाउंटेंट or CA pass. But just now I told, to become an auditor, you should be a qualified chartered accountant. Then only you can become an auditor. So अभी किसी को भी लग रहा है मुझे auditor बनना है, तो you can start preparing yourself for a chartered accountant CA examination. Okay? ठीक है? किसी को लग रहा है तो बोलो, I will guide you. You can start preparing. You can become a CA. Okay, now let us move on, because even while doing BBI, even while doing BAF, even while doing BCom, you can pursue your chartered accountant course, but it is little bit difficult. It needs lots of efforts. It's not simple. Okay, ठीक है. Now let us move on. So qualification clear हो गया. अकाउंटेंट बनने के लिए कोई भी किधर भी लिखा नहीं है आप सीए बनना है या ऐसा डिग्री चाहिए. So it depends on the company whom they are selecting as an accountant, electing as an accountant, they will appoint. There is no prescribed qualification to become an accountant. But auditor बनने के लिए it has to be a qualified, prescribed qualification है. What is that qualification? CA. ठीक है. Next difference based on appointment. Okay, before going to the next 5 points, और एक बार last 5 points देख ले, एक बार rewind कर ले. Okay, what was the first difference I told you, student? Accounting means what? Recording the transaction. Auditing means not recording, examination of those transactions which are recorded in accounting. ठीक है, ये first clear हो गया. Second, सब लोग सुन रहे हो ना, कोई सोए नहीं ना? Okay, second is what is accounting? Finalization of final accounts. In accounting हम क्या कहाँ तक रुकते हैं? Final accounts बना दिया, final हो गया, done. ऑडिटिंग में क्या करते हैं? जो फाइनल अकाउंट्स बनाया है अकाउंटिंग में, उसका रिलायबिलिटी, हाउ मच इट कैन बी रिलाइड, हाउ मच इट कैन बी ट्रस्टेड, दैट इज चेक्ड इन केस ऑफ ऑडिटिंग. थर्ड हमने डिस्कस किया, और अकाउंटिंग क्यों बनाते हैं स्टूडेंट्स? टू फाइंड आउट रिजल्ट्स, है ना, प्रॉफिट कमा रहा है, लॉस है, ये चेक करने के लिए. ऑडिटिंग में क्या करते हैं हम? जो रिजल्ट्स डिस्क्लोज किया है अकाउंटिंग में वो करेक्ट है कि नहीं, वो चेक करना हम ऑडिटिंग में करते हैं. ओके, देन फोर्थ हमने डिस्कस किया कवरेज. अकाउंटिंग कहाँ तक खत्म होता है? फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डन, उतना ही कवर करता है. बट ऑडिटिंग कितना कवर करता है? इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इंक्लूड्स मेनी थिंग्स
many things किसके ऊपर डिपेंड रहता है, either the agreement between the company and the auditor or given according to the law. Okay, so वो fourth point हो गया. Fifth point हमने discuss किया, to become an accountant there is no qualification needed, prescribed ऐसा qualification नहीं है जो CA ही रहना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है. But to become an auditor there should be, that person should be a qualified CA. Okay, now shall we move on ahead? ये 5 point clear हो गया. यहाँ तक किसी को भी doubt है? No, ma'am. No? Shall we move on now? Okay, good. Yes. Okay, let us move on then. So अभी reporting, अकाउंटेंट किसको रिपोर्ट करता है, मतलब जो कि स्टेटमेंट्स बनाता है वो किसके, हाँ किसके ऊपर मतलब कौन उसके ऊपर नजर रखता है, वो ही इज रेस्पॉन्सिबल टू whom? ही इज रेस्पॉन्सिबल टू मैनेजमेंट. ओके, उसका हिसाब किताब जो भी है कौन देखेगा, मैनेजमेंट देखेगा. बट ऑडिटर जनरली किसको रिपोर्ट करता है, शेयर होल्डर्स. Okay, so now a question may arise in your mind, what is the difference between management and shareholders? Is there such a doubt in your mind? Yes. हाँ, मैनेजमेंट कौन है, शेयर होल्डर्स कौन है, अलग अलग है क्या ये लोग, अलग अलग है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, क्यों अलग अलग है? क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट में नहीं रहता है ना. मैनेजमेंट में कुछ लोग ही रहते हैं जो मेजॉरिटी शेयर्स जिनके हाथ में रहता है और जिनको ओनरशिप राइट है, वो लोग ही मैनेजमेंट में रहते हैं, बाकी सारे लोग सिर्फ शेयर होल्डर्स रहते हैं. सो जब ऑडिटर अपॉइंट होता है और ऑडिटर रिपोर्टिंग करता है, ये रिपोर्टिंग किसको जाता है, शेयर होल्डर्स को जाता है. और अकाउंटेंट का रिपोर्ट कौन देखता है, सिर्फ मैनेजमेंट देखता है. होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीवन. नाउ this point is connected with our next point. Okay, what is our next point? Status. An accountant is employee of an organization. Okay, and an auditor is not an employee of the organization. So इसके लिए I think I skipped one point, right? अपॉइंटमेंट. हाँ, अपॉइंटमेंट स्किप किया. ओके, अपॉइंटमेंट एंड रिपोर्टिंग दोनों कनेक्टेड है. ओके स्टूडेंट्स, सो अपॉइंटमेंट, अकाउंटेंट का अपॉइंटमेंट जनरली कौन करता है, मैनेजमेंट. ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जनरली शेयर होल्डर्स करते हैं. आई हैव रिटन वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन दिस, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑडिटर, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं. बाद में जो भी ऑडिटर अपॉइंट होते हैं स्टूडेंट्स, दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स. Ma'am, internal auditor. No, not internal. I'm telling about external auditor only. See, समझो कोई सीए है जिसको ऑडिटर बोल के अपॉइंट करना है. जो फर्स्ट ऑडिटर रहता है उसको किसको अपॉइंट करे, कौन सा सीए, क्योंकि सीए तो बहुत सारे हैं, राइट. कौन सा सीए को हम ऑडिटर बोल के अपॉइंट कर रहे हैं, ये डिसीजन कौन लेता है, फर्स्ट ऑडिटर जब अपॉइंट होता है उसका डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं. ओके, उसके बाद जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है ना, वो 5 साल तक वो कंपनी में ऑडिटर बन सकता है. बीच में सपोज वो मर गया तो अलग बात है, या रिजाइन किया तो अलग बात है. बट जो फर्स्ट ऑडिटर है, जिंदा है, अच्छे से है, तो फर्स्ट 5 इयर्स वो ऑडिटर बन के रह सकता है. उसके बाद जब भी अपॉइंट होता है नया ऑडिटर का, वो कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स. ओके, इतना यहाँ के लिए आपको काफी है. अपॉइंटमेंट के बारे में अब हम नेक्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस करेंगे. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इधर ज्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है. सो आप इतना याद रखो, अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर जनरली कौन करता है, शेयर होल्डर्स. अभी एक कीड़ा आया रहेगा दिमाग में, ये शेयर होल्डर्स अपॉइंट करना मतलब कैसे है ना. शेयर होल्डर्स तो अलग अलग जगह में रहते हैं, कैसे वो लोग अपॉइंट करेंगे, जनरल मीटिंग में. यस एग्जैक्टली, वो लोग सारे लोग एक साथ मिलते हैं थ्रू जनरल मीटिंग, राइट. जनरल मीटिंग में दे पास ए रेजोल्यूशन. ओके, आपने लॉ पढ़ा है ना, रेजोल्यूशन पास करना मतलब क्या है,
ओके कौन दो लोग हैंड रेज किया? ओके those who have raised hand, any doubts? Ma'am, as you said previously that auditor is sent by ICAI. So अगर shareholder select करते like they have options कि we can select in from these auditors और ICAI Okay. खुद से send करते हैं. हाँ देखो ICAI क्वालिफिकेशन बोला है चार्टेड अकाउंट सी मैं समझो अभी सीए करना चाहती हूँ तो मेरा एग्जामिनेशन कोर्स किसके अंडर होगा? ICAI के अंडर होगा. दैट इज द मीनिंग व्हाट आई टोल्ड. ओके ICAI के अंडर मुझे क्वालिफिकेशन मिलेगा. जैसे आपको TYBBI का क्वालिफिकेशन मिल रहा है किसके अंडर मिल रहा है आपको? मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर. ऐसे ही मैं सीए बनती हूँ तो मैं किसके अंडर बन गई? अंडर ICAI. मेरा क्वालिफिकेशन इज डन थ्रू ICAI. ओके बट मैं अभी सीए बन गई. किसी कंपनी को ऑडिटर बनना है तो वो कंपनी मुझे अपॉइंट करता है. समझ में आया? ICAI ये नहीं बोलेगा तू वो कंपनी में जा ऑडिटर बन के, तू ये कंपनी में जा. कंपनी वाले खुद अपॉइंट करते हैं. जैसे मैंने बताया शेयर होल्डर सारे मिलके मीटिंग लेके वो रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हाँ चलो भाई इसको ये क्वालिफाइड है, ये इसका सारे रिक्वायरमेंट्स और इसका क्या हिस्ट्री सारे ठीक है सो वी कैन. और उसको कंपनी के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं रहना चाहिए. सो वो बंदा हम अभी ऑडिटर बोल के अपॉइंट कर सकते हैं. अभी क्लियर हुआ? Ma'am, I have a doubt. हु इज दैट? राहुल. Ma'am, I'm Sumit. हाँ सुमित बोलो. सुमित Ma'am, in the general meeting, they would be having the list of auditors, no, before keeping the meeting. दैट मे बी देयर. सी समझो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक 4-5 ऑडिटर्स को क्या बोलते स्क्रीनिंग किया है. 4-5 ऑडिटर्स. ओके दिस इज द क्वालिफिकेशन, दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर रिलेशन विद द कंपनी बोल के लिस्ट आउट किया है. आउट ऑफ दैट लिस्ट दे कैन टेक वन डिसीजन. ओके बट डिसीजन किसके ऊपर रहता है? शेयर होल्डर्स के ऊपर रहता है. होप इट इज क्लियर सुमित? Yes, ma'am. Done. Okay. Yes. मैम चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिटिंग फीस कंपनी पे करती है कि गवर्नमेंट? Company. That has to be paid by the company. Okay. क्योंकि company is not under, it is not a government company, right? If it is a public limited company or private limited company, वो खुद अपना पेमेंट करना है. Okay. Okay, ma'am. Yes, Rahul, do you have any doubts? No, ma'am. No? Okay. Thank you. Okay, so यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? हम क्या डिस्कस कर रहे थे? सो ऑडिट अकाउंटेंट का अपॉइंटमेंट जनरली कौन करता है? मैनेजमेंट. ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जनरली कौन करता है? शेयर होल्डर्स, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑडिटर एज ए टोल्ड, बिकॉज फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है. देन एज accountant is appointed by an audit management, he'll be responsible for whom? Students, he'll be responsible for management. उसका जो भी काम है देखने वाले कौन है? मैनेजमेंट. And as an auditor is appointed by shareholder, he is responsible for whom then? He is responsible for shareholders. So उसका रिपोर्टिंग भी कौन किसको करेगा? वो shareholders को करेगा. मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि समझो 1 साल का ऑडिटिंग हो गया और कंपनी अभी AGM बुला रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग कर रहा है. एनुअल जनरल मीटिंग में आपको ऑडिटर को भी एक इनविटेशन जाना चाहिए. क्लियर हो गया? और वो अपना रिपोर्टिंग उधर करता है सारे शेयर होल्डर्स के आगे. अभी क्लियर हो गया? सो उसका जो रिपोर्ट है वो किसको जाता है? शेयर होल्डर्स. होप दिस पॉइंट इज क्लियर. नाउ लेट अस मूव. Yes, ma'am. Okay, thank you. Next, let us move on. Status. An accountant is an employee of the organization, but auditor is not an employee of the organization. ये हमने डिस्कस किया था. Except internal auditor. Internal auditor कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, but external auditor हमेशा कौन रहना चाहिए? A qualified CA who is an outsider. ओके समझो मैं कंपनी का अकाउंटेंट हूँ और मैं सीए हूँ, फिर भी मैं एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं बन सकती बिकॉज आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. Who should be an auditor? External auditor has to be an outsider, plus he should be a qualified CA. Hope this point is clear. Okay. Now,
Coming to errors and frauds. मैम Yes, any doubt? मैम जो इंटरनल ऑडिटर है वो दूसरी कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिटर बन सकता है ना? Exactly, बन सकता है. Okay, but जो इंटरनल ऑडिटर है, समझो मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ और सीए भी हूँ, मैं दूसरा कंपनी का ऑडिटर बन सकती हूँ, प्रोवाइडेड मेरा कंपनी और वो कंपनी के साथ कुछ भी रिश्ता नहीं रहना चाहिए. समझा? Okay. समझो मेरा Yes. कंपनी उनका कंपनी का माल खरीद रहा है, तो क्या हो गया, हम लोग आपस में रिश्तेदार बन गए ना. मैं सप्लायर Yes. मैं खरीद रही हूँ तो वो मेरा सप्लायर बन गया, तो मैं तब उनका ऑडिटर नहीं बन सकती. ओके. और मैं फुल टाइम एम्प्लॉई हूँ इधर, तब भी मैं उधर ऑडिटर नहीं बन सकती, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉई हूँ. ऑलरेडी आई एम एन अकाउंटेंट, दैट टाइम आई कैन नॉट बिकम एन ऑडिटर. ऑडिटर बनने के लिए मैं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कहीं पे भी नहीं करना चाहिए, तब जाके मैं दूसरा कंपनी का ऑडिटर बन सकती हूँ. ये क्लियर हो गया पॉइंट? Yes, मैम. ओके, थैंक यू. ओके, नाउ गोइंग टू दिस लास्ट 2 पॉइंट्स, फटाफट खत्म करेंगे. एरर्स एंड फ्रॉड्स का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एन एरर एंड फ्रॉड? फास्ट. Ma'am, एरर जो error is गलती से हो जाए. unintentional and fraud is intentional. हाँ, वेरी गुड. एरर इज जनरली इंटेंशनल, है ना? सॉरी, अनइंटेंशनल. जब मैंने गलती से 500 की, जो तुम लोग करते हो ना एग्जाम में, हाँ, वो एरर रहता है ना. 500 था, आपने एक अंडा एक्स्ट्रा डाल दिया, 5000 कर दिया, दैट इज एन एरर. इंटेंशनली नहीं किया. क्वेश्चन पेपर और इसमें थोड़ा गाई में एग्जाम के टेंशन में 500 इधर उतरते 5000 हो जाते हैं, ये 5000 इधर उतरते 500 होता है. व्हाट इज दैट? दैट इज एन एरर. Unintentional mistakes are called as error. वही जानबूझ के बैलेंस शीट टैली होना है बोल के एक अंडा एक्स्ट्रा डालते हो, कभी याद है ना एग्जाम में किया है कोई? सबने एक बार तो कभी ना कभी किया है. एक साइड का लायबिलिटी का टोटल आया 5 लाख, एसेट का नहीं आ रहा है, फिर भी 5 लाख डाल के आए, दैट इज अ फ्रॉड. Okay, so when a mistake is done intentionally, we call it as fraud. When such a mistake is done unintentionally, we call it as an error. Okay, now ये clear हो गया. So an accountant may commit errors or frauds, है ना? इसके लिए वो error और fraud करता है बोल के हम लोग बाहर वाले से चेक कर रहे हैं ना. So being an accountant, I can commit an error or I may involve myself in fraud. Error human being है ना, error तो होता ही है, जैसे आप लोग एग्जाम में करते हैं ना. But an auditor cannot commit any error or fraud. क्यों? क्योंकि उसका काम क्या है? जो एरर एंड फ्रॉड है जो ऑलरेडी हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना. वो खुद आके एरर फ्रॉड किया तो वो नहीं हो सकता, उसके ऊपर केस हो जाएगा if you do like that. Okay, so an accountant may commit. I am not telling he can commit. Definitely एक लेवल रहता है, उसके ऊपर वो फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर भी केस होगा, बट चांसेस है कि वो कमिट फ्रॉड और एरर करने का, बट ऑडिटर कैन नॉट कमिट एनी एरर और फ्रॉड. होप इट इज क्लियर. नाउ गोइंग टू द लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है. व्हाट इज दैट? commencement of accounting या beginning of an accounting. accounting कब start होता है स्टूडेंट्स? जब बुक कीपिंग खत्म होता है हम अकाउंटिंग स्टार्ट करता है ना. आपने पढ़ा था व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग. बुक कीपिंग सिर्फ एक बुक में लिख के जाते हैं, ऐसे ऐसा इतना पैसा हमने इसको दिया, इसको इतना पैसा हमने इससे लिया, ये बुक कीपिंग होता है. अकाउंटिंग क्या होता है? प्रॉपरली उसको डबल एंट्री इफेक्ट देना हम अकाउंटिंग बोलते हैं, है ना. सो अकाउंटिंग कब स्टार्ट होता है? एज सून एज बुक कीपिंग एंड्स. और अकाउंटिंग कब खत्म होता है स्टूडेंट्स? I have not intentionally written that. Yes, after financial year. Yes. After preparing what? Accounts. Ma'am, final accounts. Final accounts. That is the answer I needed. So accounting begins once the bookkeeping ends, and where accounting is ending, students, after preparing final accounts. ये clear हो गया? Okay. Now coming to auditing. Where auditing is beginning, students? When
अकाउंटिंग When accounting ends. एग्जैक्टली अच्छा पॉइंट है ना ये. सो जब अकाउंटिंग खत्म हो गया अभी ऑडिटिंग स्टार्ट होता है, क्योंकि अकाउंटिंग में सारे रिकॉर्ड्स हो गया. अभी ऑडिटर का काम ये रहता है जो भी एरर्स फ्रॉड्स रिकॉर्डिंग में है उसको आइडेंटिफाई करना ऑडिटर का काम है. सो जनरली ऑडिटिंग बिगिंस व्हेन अकाउंटिंग एंड्स. एंड वन मोर क्वेश्चन नाउ, लास्ट क्वेश्चन. व्हेन द ऑडिटिंग विल एंड? ऑडिटिंग कब खत्म होता है? अकाउंटेंसी. नो, ऑडिटिंग कब खत्म होता है? जब हमने ऑडिटर ने फाइनल रिपोर्ट बना दिया है ना. हाँ, ऑडिटर का भी रिपोर्ट रेडी है. अभी ऑडिटर रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को सबमिट किया, डन, ऑडिटिंग खत्म होता है. आई हैव नॉट रिटन इंटेंशनली एंड देयर. आई वांटेड टू आस्क यू फ्रॉम यू. सो I repeat, when the accounting begins with the bookkeeping, when it ends with the final accounts. When the auditing begins, when accounting ends, and when auditing ends by preparing final report. Okay. Report. So everyone tell me, accounting and auditing clear हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको Yes, ma'am. पक्का पक्का Yes, क्लियर ma'am. हो गया? ओके, वेरी गुड. Yes, सो ma'am. आज हमने 2 टॉपिक पढ़ा. कौन कौन सा? थोड़ा बहुत और एक बार मीनिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटिंग पढ़ा. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पढ़ा. सो अभी तक जो पढ़ा, होप एवरीवन आर क्लियर विद दैट. कल हम एक मेजर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग. ओके, कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करो. एनीवेज, ये सारे टॉपिक अभी तक जो पढ़ा है वो सारे इंपॉर्टेंट ही है. होप एवरीवन अभी तक सबको क्लियर हुआ व्हाट इज ऑडिटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am, clear. ओके. Yes, ma'am. हाँ मैम पक्का. So hope you are interested in auditing. Yes, ma'am. Yes, Very ma'am. good. Yes, Okay, ma'am. very good, very good. Yes, So ma'am. shall we wind up our lecture for today? सबने अटेंडेंस दे Yes, दिया ma'am. चैट बॉक्स में? Yes, ma'am. नहीं, हाँ, जो नहीं दिया है प्लीज पुट योर रोल नंबर एंड नेम ऑन द चैट बॉक्स फास्ट, एंड आफ्टर दैट यू कैन लीव द क्लास. ठीक है? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे ऑन टाइम. एंड जो आज लेट आए कल लेट मत आ जाओ, टाइम पे आ जाओ. ठीक है? एंड साइड में प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग प्रॉपरली. और कल हम स्टार्ट करेंगे वापस आज का एक बार रिवाइंड कर.